think that is not a fair comment on the part of Honorable Leader of Opposition. हो गया, अब जरा किसानों की चिंता करो। क्वेश्चन नंबर 22, श्री अशोक चौहान जी। Madam Speaker, question number 22. यस मिस्टर मिनिस्टर। Speaker, Madam, going by the importance of the question and its relevance in the today's context, the impact of climate change on agriculture and ultimately the farmers and huge financial losses which the farmers are incurring today, and ultimately leading to large number of suicides in the country as we are observing today. Yes. My question has been very specific, but unfortunately the answer from the minister is not correct. I have asked for the total loss incurred by the farmers in the country. The answer has not come. It's only mentioning the amount which the assistance has been granted or is to be granted. Speaker, Madam, then they have already mentioned that the ICAR and the CREDA have mapped around 572 districts of the country which are vulnerable to the climatic change, and even there have been consultation meetings going on. There have been contingency plans which have been drawn up. But factually this issue is that the ground reality is that there is no implementation as far as what the minister has told in the answer. Only there may be plans on paper. What is But if I mention the large number of deaths of people who are committing suicides due to the climatic changes, the scarcity situation, where in some parts of the country there have been heavy rains, ultimately the farmer is the loser in the entire thing. And nothing has been implemented as far as the government of India is concerned. Ma'am, there is a statement given by the minister in which the NDRF amount which is to be released to the various states has been mentioned. This is a ministry's statement. I would like to specifically mention here that several teams have gone to, particularly Maharashtra. See, I'm talking about Maharashtra because I belong to the state. Several teams have gone to the state. They almost 4 to 5 times the teams have gone. They have assessed the situation. The total amount have also been mentioned here, but the state government has asked around 4,000 crores to be released to the state government. But so far, now it is almost December, and till date, the total requirement expenditure assessed by the government of India is nil. Is showing that not a single amount has been assessed, nor assessed. So my question is that when more than 3,000 people are committing suicides in the state of Maharashtra, and government of India teams have gone last 6 months, they are going continuously. Why the ministry is sitting over this issue, and when are they going to release? His own statement. Okay. My question is when the money is going to be released to the state governments to overcome the situation which has been arisen due to scarcity in Maharashtra? Okay. Yes, Minister. सभापति महोदय, ये जो विवरण हमने सभा पटल पर रखा है उसमें आपके जो मूल सवाल हैं उसके विस्तार से उत्तर हैं, और जो ये आकस्मिक योजनाएं हैं हम राज्यों के सहयोग से बनाते हैं और राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित करते हैं, और निश्चित रूप से बैठकें हुई हैं, राज्यों के अंदर बैठकें हुई हैं। अब उसका क्रियान्वयन नीचे में हम राज्यों को जो प्लान देते हैं कि यदि सूखा इतने दिन वर्षा नहीं होती है तो कौन सा फसल, कौन सा बीज उपयोगी होगा, ये सारी योजनाएं 100 जिलों को उपलब्ध कराई गई है, और राज्यों के सहयोग से ही कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, ICAR के सहयोग से बनाया गया है। जहां तक महाराष्ट्र का सूखा का सवाल है, पिछली बार भी आप ध्यान देंगे, पिछली बार भी जब सूखा आया था तो हमने भारी सहायता की थी, और पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने सभी दल के सांसदों के साथ हमने बैठक की थी, और आज तक के इतिहास में उतनी भारी सहायता कभी जो पिछले वर्ष दी गई थी। इस बार राज्यों की ओर से सभी राज्यों को हमने बात कर के, चाहे वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों से हमने बात की, और कर्नाटक का भी सबसे पहले आ गया। तो सबसे पहले टीम गई, उसका आकलन दिया, और जो HLC है, जो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी है, उसके माध्यम से 1500 करोड़ की राशि उनको उपलब्ध करा दी गई है। महाराष्ट्र से टीम कल लौट कर आई है, और टीम में विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य होते हैं, 6-7 मंत्रालय के सदस्य होते हैं। 2-3 दिनों के अंदर उनकी बैठक होगी, और उनका अनुशंसा हाई लेवल कमेटी जो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में है, जिसमें वित्त मंत्री,
सदस्य मैं भी हूं और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र को भी पूरी सहायता दी जाएगी। यस सेकंड सभापति महोदय, यस मेरा सवाल बिल्कुल सही, मतलब जो मैंने अपेक्षित किया था, ये बात सही है जो मंत्री जी ने यहाँ खुद कबूल किया है कि कोई भी राशि अभी स्टेट को रिलीज नहीं की गई है। आज दिसंबर हुआ है, ये मामला चल रहा है जून जुलाई से लेके 6 महीने से भी ऊपर इस इशू को हुआ। इतना गंभीर विषय आज है, जब 3000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते बता हैं दिया तो हमने, मैं इसकी जो गंभीरता है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आपकी जरा मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं कि जब इतने लोगों ने आत्महत्या की है, पैसा जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए और मंत्री जी ने कबूल किया है, अब तक कोई पैसा रिलीज नहीं किया गया है। मेरा दूसरा इसमें सवाल सभापति महोदय ये है कि आज जवाब ये आ रहा है कि मैं देख रहा था इनमें कि ICR, निकरा, NMSA की जो स्कीम्स बनाई गई है, इसके तहत कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स की बातें यहाँ पर कही गई है। हमारा ये सुझाव इसमें ये है, या मेरा कुछ सवाल इसमें है, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स वाला मामला नहीं है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो आज देश में हो रही है, वो लॉन्ग टर्म मेजर जो आपको करना जरूर कीजिए कि हाई रेजिस्टेंस सीड्स देना है, खाद देना है, ये तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में जो मामला आपका विचाराधीन है वो करना चाहिए, उसमें दुमत नहीं है। आज जो इमीडिएटली जो करने की आवश्यकता है पूरे भारतवर्ष में, और खास करके जहां जिन स्टेट्स में सूखे की हालत बहुत गंभीर है, वहां जब तक आप इमीडिएट मेजर्स कुछ नहीं लेते हैं तब तक वहां किसान को राहत नहीं मिलने वाली है। मेरा सवाल मंत्री से स्पेसिफिक ये सवाल है, क्या इन किसानों की जो ऋण है, जो पैसा उन्होंने बैंक से लिया हुआ है, उसको कर्जा माफ करने के लिए सरकार कोई फैसला करेगी या नहीं करेगी, ये मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय सदस्य ने प्रारंभ किया कि कोई सहायता सूखा के दृष्टि से राज्यों को अभी तक नहीं किया गया। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सभी राज्यों के पास राज्य आपदा कोष होता है और भारत सरकार की उसमें राशि रहती है। भारत सरकार उसमें राशि एडवांस में देकर रखती है कि कोई आपदा है तो उसका इस्तेमाल इमीडिएट वो राज्य सरकार करे, और फिर आपदा की सीमा यदि बढ़ती है तो एक मेमोरेंडम दे विस्तार से यहाँ, और तब टीम जाएगी, आकलन होगा, और तब HLC के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा कोष से भी हम उनको सहायता करेंगे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राज्य आपदा कोष के मद में महाराष्ट्र को ये 13-14 में 512 करोड़ रुपए दिए गए थे। मैं बता रहा हूं, पूरा तो सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। तो 13-14 में 512 करोड़ और 14-15 में 538 करोड़, और जो आप सुनना चाहते हैं 15-16 में इस बार 1483 करोड़ का आवंटन किया गया है। इतना भारी आवंटन किया गया है और प्रथम किस्त रिलीज कर दिया गया है। यस नरेंद्र भाई कछाड़िया।